নারী উদ্যোক্তার মুখে কথা শুনবো। দেখুন, বাংলাদেশে হয়তোবা এরকম নারী উদ্যোক্তা হলে মানুষের সমালোচনায় আসতো। আর সেই নারী উদ্যোক্তা নাকি দেখেন কি কমফোর্টেবল ভাবে মানে ফার্ম ম্যানেজমেন্টের কথা বলছে। আপনারা এখান থেকে আসলে উদ্যোগ নেবেন যারা আমার চ্যানেলের নারী সদস্য আছে। আসলে দেখুন, একটা কমফোর্টেবল কথা, না শুনলে বুঝতে পারবেন না। চলুন আমরা শুনে আসি। जैसे हमने ये बुल तो 7.5 लाख का लिया था। 7.5 लाख। जी। मैडम ट्रैक्टर आ जाता है घर में, गाड़ी आ जाती है एक अच्छी खासी। पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज हम बहुत दूर चलकर आज जयपुर आपके फार्म पे आए हैं। बहुत सुना था आपके फार्म के बारे में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दी। হ্যাপি সুন্দর পরিবেশ দেখেন, খোলামেলা। এখানে ফার্মের আপনারা এই বহির্বিশ্বের এগুলো ফার্ম দেখে নিজে বুঝতে পারবেন যে খোলামেলা আবার মধ্যে রাখলে আসলে ফার্ম কত সুন্দর, এবং গরুগুলো আসলে কত কমফোর্টেবল ভাবে মানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। দেখেন আসলে এগুলো থেকে আসলে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা মানে জেনারেট করতে হয়। আসলে যখন কোনো গাভীর ফার্ম আপনারা পরিদর্শন করতে যাবেন, তাকে ভালো দিক মন্দ দিক দুইটা মনে করে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। तो मेरा नाम इशिता जैन है। তিনি তার পরিচয় দিবেন আসলে আহ, যে তিনি আসলে কি এবং কিভাবে খামার করেন পরিচয় দিবেন। आप यहाँ किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स में है। ये तिबारिया में स्थित है, जयपुर में, राजस्थान में। और हमारे पास सारी गिर गाय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारे पास करीबन 100 गिर गाय हैं। आपकी जो एजु আসলে ইনি ইন্ডিয়ানের রাজস্থান অর্থাৎ যে জায়গায় গিরের উৎপত্তি সেখানেই ইনি খামারটি উপস্থাপন করছে। তবে আপনারা যদি গির জাতের গাভী বা গির জাতের ষাঁড় বেশি করে ক্রয় করতে চান, অবশ্যই ইন্ডিয়াতে ভিজিট করে ক্রয় করুন। তাহলে হয়তোবা দেখবেন যে তাদের সাথে কিছু তৃতীয় সোর্স থাকে, সেগুলোর সোর্সের মাধ্যমে আপনাকে পার করে দিবে গরুগুলো। एजुकेशन है क्या है? जी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया था। দেখেন, মেয়েটি কিন্তু আসলে শিক্ষিত, সে ইঞ্জিনিয়ারের উপর এমবিএ করেছে। मुझे लगा तभी मैंने आपसे पूछा है जी। कि आप हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ जी। तो आप ये गौवंश जो पालने में कैसे रुचि रखते हैं आप? एक्चुअली তিনি বলতেছেন যে আসলে ইনি একটা হাই গ্রেড এডুকেশনাল অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। এখন এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর আসলে গরু দেখি সে মানে লালন পালন, তিনি তার ব্যাখ্যা দিবেন। দেখেন मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है इसमें। मेरे हस्बैंड ने 5 साल पहले ही स्टार्ट किया था फार्म। 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं। তিনি তার হাজবেন্ডের সাথে কিন্তু ফার্মের ম্যানেজমেন্ট করেন। 5 সাল 5.5 সাল আগে তিনি ফার্ম ম্যানেজমেন্ট করেন। और फिर जब हमारी शादी हुई उसके बाद से मुझे एकदम इंटरेस्ट आ गया, और उससे पहले से ही नेचर में काफ़ी ज़्यादा रुझाव था मेरा। तो उसके बाद से हम दोनों मिलके ही ये गौशाला को बहुत अच्छे से चलाते हैं। और দেখেন, सब একদম স্বামী আর স্ত্রী দুইজন মিলে কিন্তু আসলে ফার্মটা ম্যানেজমেন্ট করছে। আসলে এটা থেকে বুঝতে হবে আসলে মেয়েদের ছোট করে দেখার কোনো খুব নেই। गायों की सेवा करते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? लोगों को नहीं पता, गिर नाम सुना है, जी। खुद मुझे भी नहीं पता कि कितने इसके विशेषताएं हैं। थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे भारत की कितनी नस्लें जी। हैं। जो 2 कैटेगरी होती है, एक होता है विदेशी गाय जो कि एचएफ जर्सी होती है, और एक होता है देसी गाय, हमारे भारत की जो एक्चुअल नस्ल है, जो पुराने जमाने से है। দেখেন, তুমি বলছো যে আসলে দুইটি ক্যাটাগরি বেসে মানে গাভী হয়, একটা নিজের এলাকায় আর আরেকটা বিদেশি। तो उसमें से एक नस्ल होती है गिर। ये गुजरात की नस्ल होती है। দেখেন, এরা আসলে এদের ইন্ডিয়ার গুজরাট রাষ্ট্রের একটা মানে জাত হেভি। আসলে স্কিনে যে দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে প্রপারলি আসলে কিন্তু এটা আসলে ভালো খুব। तो इनके काफी डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत দেখেন, এখানে আরেকটা জিনিস মানে জেনে রাখেন, এখানে কিন্তু সাদাও কালার হয়, আবার কড়া লাল হয়। অর্থাৎ শাহিওয়ালের মতন কড়া লাল হয়, আবার সাদা আকার ধারণ করে। अलग होती हैं। जैसे कि आप देखें तो इनके जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं। मतलब अंदर की तरफ आप एक सिक्का रख दे तो वो आप रख सकते हैं, होल्ड हो গরুগুলো থেকে আমার जाएगा। आप अगर इनके सींग देखें तो ये कान से छू के जाने चाहिए। इनका जो माथा होता है, मस्तिष्क अगर आप देखेंगे तो
तो वो उल्टे मटके की तरह आपको दिखेगा। इनकी हम्प की मैं बात करूँ तो वो 90 डिग्री बनाना चाहिए विद द बैक। अगर मैं আসলে और detail में গাড়িগুলোর जाऊँ মানে तो। মই और इनका जो ड्यूलैप होता है अगर आप देखें तो गले से जो शुरू ये होके, लटका हुआ हाँ होता जी, है। जो लटका हुआ होता है वो पूरा नीचे तक पीछे तक जाता है, जी। तो वो पूरा हवा में होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे आप पहचान सकते हैं, असली गिर की पहचान आप कर सकते लेकिन हैं। असल इनके गिर अगर तो मैं दिखती और है। डिटेल में जाऊँ तो जैसे अगर आप इनका थन देखें तो ये काफ़ी टाइट और फिट होना चाहिए। अगर किसी को लेनी है गाय या उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से गाय लेनी है, मिल्किंग के हिसाब से कैसी गाय लें, तो उनके जो थन होते हैं वो टाइट और फिट होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट पे होने चाहिए इनके टीथ्स। और আমি मिल्क আরেকটা কথা বলবো একটার মধ্যে আসলে দেখুন একটা শিক্ষিত জেনেটিকের মানে মানে কথা বলার স্টাইল প্রসেস এবং তিনি ফার্মের সম্পর্কে বিস্তারিত বলার একটা দৃশ্য কিন্তু আসলে আলাদা। আসলে শিক্ষিত হলে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন, কিন্তু শিক্ষিত না হলে এরকম ভাবে উন্নতি করা সম্ভব না। वेन चेक करनी चाहिए कि अच्छी मोटी मिल्क वेन है इनकी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये असली गिर है। मैडम मिल्किंग कैसी है गिर गाय की? ये गाय की मिल्किंग एवरेज में 5 to 6 लीटर्स मिल्क रहता है। मतलब आप एक्सपेक्ट 5 करें থেকে कि 6 बहुत ज़्यादा मिल्क मिलेगा, तो ऐसा होता नहीं है। आप बहुत लोगों के यहाँ देखे होंगे कि हमारी गाय तो इतना दूध देती है, इतना दूध होती है, वो पॉसिबल नहीं होता। वो एक बार चलो दे दी हो, जी। पर अदरवाइज आप देखें तो कि इतना ही रहता है। वही है जैसे सोना है कम मात्रा में पाया जी। जाता है तभी उसकी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कम प्रोडक्शन है उसी वजह से उसकी দেখুন वैल्यू আসলে है। हाँ তারা जी। প্যাকেজিং করে मतलब एक प्यूरिफाई मार्केटिंग होके है। इसका जो है A2 मिल्क बोलते हैं। A2 मिल्क बोलते हैं। ये A2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन गायों में A2 प्रोटीन पाया जाता है इनके दूध में। जी। जर्सी एचएफ के दूध में A1 प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इनके दूध में A2 प्रोटीन होता है, इसलिए इनकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल और ग्रोथ गिर के लिए दूध बहुत কিন্তু अच्छा होता है, protein পরিমাণ इम्यूनिटी বেশি। के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये सोने से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ये मॉडल है जी। ये ब्रीडिंग मॉडल है, हाँ जी, हम पूरा संवर्धन पे ही काम करते हैं। मतलब हमारा- नस्ल सुधार पे आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन एजेंडा ही वो है। जी। घी दूध ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, बट असल में ये बहुत जरूरी है कि हम इस नस्ल को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। नस्ल सुधार के लिए बुल का बहुत इम्पोर्टेंस है। जी। जितना टोटल गाय उतना ही वैल्यू बुल की भी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी ज्यादा वैल्यू कहेंगे आप बुल की, तो बहुत ऑफ कोर्स वैल्यू रहती है क्योंकि बुल से ही आगे की जनरेशन बेटर बन सकती है। तो बुल तो आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। बुल से আমরা এটা আসলে generation- ভুল করি। আসলে বুলের জেনারেশনটা আসলে জেনুইন, কারণ বুল যদি ভালো হয় তাহলে সেখান থেকে কনসেপ্ট রেটটা ভালো হবে এবং অরিজিনালি বাচ্চা আসবে। जिक्र किया कि आपके पास जो बुल है उसके ठीक क्या है, बस size, कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा इस बारे में बताइए। বাংলার बिल्कुल। মরিচের মতো। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक ब्रीडिंग बुल है राज। जी। तो राज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हमने बुल का नाम भावनगर है से राज। ही लिया था, भावनगर ब्लड लाइन का है। और इसके रिजल्ट्स अब हम देख रहे हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट्स है इनकी। इसके जो रिजल्ट है उनका दूध इतना अच्छा आ रहा है और खूबसूरती में भी इतने अच्छे हैं। और जैसे कि आप राज को भी देखें तो उसका प्रॉपर बिल्टअप है और प्रॉपर एकदम आप प्योरिटी वाइज बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये अच्छा गिर बुल है। मैडम एक बुल की क्या कॉस्ट होती है अच्छे बुल की जैसे आपके पास? जैसे हमने ये बुल तो 7.5 लाख का लिया था। 7.5 हाँ लाख। जी। একটা বুল 7.5 লাখ টাকা। गाड़ी आ जाती है एक अच्छी खासी। पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप बुल तो कोई मतलब इसकी कोई वैल्यू मैं ये प्राइसलेस कंपैरिजन होता है। इसलिए किया है कि लोगों को একটা वैल्यू গরু 7.5 লাখ টাকা আমরা জানতে পারেন। जी वही। और होता ये है कि जैसे आप हमारी गौशाला में देखें, हम संवर्धन पे काम करते हैं, तो जितने भी हमारे मेल काफ्स भी होते हैं तो वो इतने अच्छे होते हैं कि लोग ब्रीडिंग के लिए ले सकते जी, हैं। जी, उन्हें। बिल्कुल। लोग लेके भी जाते हैं ब्रीडिंग के बच्चे लिए। तो राज के ही है ना। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। तो उसके वो भी हमारे ऐसा नहीं रहता है कि हम मेल काफ्स को कहीं पे भी छोड़ दिए या उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम उनको भी बहुत अच्छे से पालते हैं, बड़ा करते हैं। बुल जब चुनते हैं तो ये देखते हैं कि बुल की जो मदर थी जी वो कितना दूध देती थी, हाँ उसी जी। हिसाब से कि आगे यही जनरेशन यही जीन्स लेके जाएगा। जी, जी, तो जी। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था? इसकी माँ का अराउंड 20 लीटर्स था। দেখেন একটা বুল যখন আপনার মানে ওর মায়ের রেকর্ড নিচ্ছে, কিন্তু আসলে মায়ের দুধের রেকর্ড কত এটা আপনাদের জানতে হবে। কারণ আমরা যারা কমার্শিয়াল গাভী পালন করে থাকি তাদেরকে এক্সাক্টলি জানতে হবে যখন কোনো সিমেন্স দিবেন তার দুধের রেকর্ড কত, তার মায়ের দুধের রেকর্ড কত।
যদি জেনে দেন তাহলে অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন। বৈশাখী যে ইউটিউব চ্যানেলের যে তথ্যগুলো দিয়ে থাকি একে 100% জেনুইন, এখানে কোনো প্রকার কোনো ফ্যাক্ট কোনো তথ্য না। ভিউয়ার্স অবশ্যই আপনারা মেজারমেন্ট করবেন, দেখবেন, তারপরে চিন্তা ভাবনা করবেন। আমার সাথে কমিউনিকেশন করতে পারেন ভালো ভালো গাভীর জন্য। তো চলুন আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। 20 लीटर एक दिन का। तो गिर में अगर 20 लीटर है तो एक एलिट क्लास में आ गई ना वो। हाँ मतलब ये एक्सेप्शनल हो गया आई वुड से, एकदम ही ज्यादा 20 लीटर्स, वरना जैसे कि मैंने आपको कहा 20 लीटर जनरल सबसे में बेशी। इतना होता है नहीं। मैडम आपने कहा कि हम बाय प्रोडक्ट के तौर पे अपना ये चीजें बनाते हैं, घी देखिए, और दूध। একটা মহিলা लेकिन দেখেন आप जो আসলে milk है তারা अपने দুধ কিন্তু মার্কেটিং এ সেল काफ করে। को पिलाते हैं। हाँ जी, हम दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि 2 थन का तो काफ को ही दे दूध, क्योंकि तभी तो हम जब नस्ल सुधार पे काम ही कर रहे हैं तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को पूरा उनका हक दे दूध का। मैडम तो मुझे बहुत पता है जरूरी क्योंकि गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में पला हूँ। जब हम छोटे होते थे तो 2 थनों का पिलाया जाता था, जब बच्चा चारा खाने लगता था तो 1 थन का देते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम उसको नहीं पिलाएंगे तो नस्ल सुधरेगी कैसे? सुधरेगी कैसे? हम बच्चों पे ही ध्यान नहीं देंगे जी। तो ये तो आप बचे हुए दूध से क्या करते हैं? हम बचे हुए दूध का हमारा दूध थोड़ा क्वांटिटी में सेल होता है जयपुर में जी। और बचे हुए दूध का हम वैदिक प्रोसेस से घी बनाते हैं। जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक प्रोसेस मतलब हम पहले पूरे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका बिलोना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, मतलब 3:30 से 5:30 रात हमारी में अम्मा भी वही, सुबह हम सो के भी नहीं उठते थे उस समय। बिल्कुल। ভিউয়ার্স একজন মহিলা উদ্যোক্তার কথা শুনে আজকে যে আমাদের মানে শিক্ষা হলো, আসলে দেখেন তারা কত কমফোর্টেবল ভাবে মানে গাভী লালন পালন করেছে। আসলে বাংলাদেশে এরকম উদ্যোক্তা আসলে পাওয়া দুর্লভ সাধ্য। আমি যদি সম্ভব হয় ইন্ডিয়াতে যাই অবশ্যই এই ফার্মে ভিজিট করবো ইনশাআল্লাহ। बिलोना, हाँ जी। और फिर उससे जो मक्खन अलग होता है वो हम कंडों के ऊपर मिट्टी के बर्तन में गर्म के करके, ऊपर। हाँ जी, जिसको हाड़ा बोलते हैं या कई लोग बरोसी भी बोलते हैं, उसमें गर्म किया जाता है धीमी आंच पर। तारा जी, नीले धीमी को आंच drink पे, करे। क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं उस जी। वजह से और इनहैंस होते हैं, तो हाँ, ये क्योंकि काफी टेम्परेचर ज्यादा हो न्यूट्रिएंट्स उसके सबसाइड हो हाँ जाते जी, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी। अच्छा, दूध आपका जो आप सेल करते हैं वहाँ हाँ पे पैकिंग में करते हैं, लूज करते हैं? नहीं हमारा रॉ मिल्क जाता है ग्लास बॉटल्स में। रॉ मिल्क ग्लास ग्लास बोतल बोतल में हाँ जाता जी है जी जी ना? जी। पैकिंग क्या होती है पैकिंग ग्लास की, कांच की 1 लीटर की एक बॉटल लीटर होती की है, बोतल। हाँ जी। और किस रेट में आप सेल करते हैं? तो हमारा दूध जाता है जयपुर में 125 रुपए लीटर में। जी। 125 पर टका ये लीटर। प्रॉब्ली जयपुर का सबसे कॉस्टली होगा, पर ये है भी इसलिए क्योंकि जरूरी है ये रेट रखना। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। आपके पास सोना है सच में तो आप कैसे कम रेट में दे सकते हैं? मैं 150 रुपए लीटर में खरीदता हूँ। बिल्कुल लिटर मिल्क मेरे आप 150 টাকা লিটার বিক্রি করার দরকার কিন্তু তারা आपने 25 सुना होगा টাকা লিটার डेयरी বিক্রি का जी नाम। जी। वो जो है रावत जी, असीम रावत हाँ जी, जी। वो मेरे फ्रेंड हैं, जी। वो डायरेक्ट मेरे घर भिजवाते हैं और वो 150 रुपए लीटर होता है। जी तो आप तो समझते हैं इसकी जी, वैल्यू। मैं समझता हूँ तभी मैं ले रहा हूँ। हाँ जी। जी। अच्छा, जो घी है वो पैकिंग कैसे होती है? थोड़ा सा आप हमारी हमारे दर्शकों लेकिन को- जिन्हें बिल्कुल शक हमारी घी की पैकिंग मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं वो 1 लीटर के जार में होता है और 1/2 लीटर के जार में होता जी। है। तो जो हमारा 1 लीटर का जार है उसकी कीमत है 3000 रुपए पर लीटर देखिए। और 1 লিটারের ঘিয়ের দাম 3000 টাকা। छोटा 1/2 लीटर का है वो है 1600 रुपए হাফ লিটার যেটা সেটা 1600 রুপে। पर 1/2 लीटर। तो इंडियन आप रुपए। किसी को रिक्वायरमेंट होती है कैसे भेजते हैं उसको? हम उनको होम डिलीवरी करते हैं पूरे ऑल ओवर जयपुर तो जाता ही है, प्लस हमारे ऑल ओवर इंडिया जाता है घी, हम कुरियर অল करते ওভার हैं ইন্ডিয়া তার সেল করে। और हमारा एक्सपोर्ट भी होता है घी। देखिए, बाहरी आप देशों में- वैदिक रीति से तैयार करते हाँ हैं, जी। लेकिन किसी भी चीज की गुणवत्ता के लिए उसके लिए जो ये खा रही है, बिल्कुल। ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हाँ जी जी तो जी। थोड़ा सा आप इनको फीड में क्या देते हैं इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारे फार्म पे ही ऑर्गेनिक फॉडर लगा हुआ है, हरा चारा। तो इसमें हमने रचका लगाया हुआ है, हम नेपियर देते हैं गायों को, हम मोरिंगा देते हैं, वो नेपियर। काफी अच्छा होता है गायों के लिए। हम ज्वार देते हैं, मक्का, गेहूं का दलिया ये Commercial, देते असली हैं और हमें processing हम type जड़ी के बूटियां भी commercial देते है, हैं, सब जैसे कुछ कि भी आसपास। शतावरी, अश्वगंधा और आंवला देते हैं, हल्दी देते हैं, ये सब काफी अच्छा होता है गायों के लिए। तो मतलब आप गोपालक के साथ साथ वैद्य वाला भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो जरूरी है, क्योंकि मतलब- इम्यूनिटी डेवलप होगी तो बीमारी नहीं हाँ आएगी। जी बिल्कुल ये तो है। जी।
अच्छा मैडम, मैं देख रहा हूँ ये शेड बना हुआ है जी। आपका, काफी बड़ा फार्म है। हाँ जी। ये कितनी लैंड पे बना हुआ फार्म? ये हमारा 20 एकर्स में है। 20 हाँ एकड़ जी, 20 अपना एकड़ है। अपना है पूरी लैंड। 20 एकड़ बहुत নিজস্ব জমির উপর अच्छी बड़ी আপনারা इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। आपका चिलिंग प्लांट भी है, हाँ जी, हमारा और पैकेजिंग प्लांट भी है जी, आपका। जी। तो इन्वेस्ट कितना किया आपने? तो अगर मैं लैंड को एक्सक्लूड करूं तो यहाँ पे 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है सब चीज़ों 1 में। करोड़ जी। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, गायें देखें, जी। और पूरा हमने जो भी चिलिंग प्लांट सब कुछ है तो इसमें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपने रेट डाली हुई है, ये हाँ जी। सबसे अच्छा है इनके लिए। जैसे हम लोगों के लिए गद्दा আসলে होता করোনার है, পর কেমন পড়ে গেছে नेचुरल बेड लगाया কি हुआ সুন্দর आपने। একটা एक तो इसमें अगर ये ये दर्शक वीडियो नहीं ना देखला शादी আসলে करेंगे मिस तो बैठ करेगा जाएगा, गीला नहीं रहेगा। बिल्कुल। गीला होगा तो पशु बीमार होता है। हाँ जी, होता ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे, जो कि सुबह 3:30 बजे और दोपहर में 3:30 बजे, उसी टाइम पे गाय बंधती जी। है और उनकी फीडिंग होती है, और बाकी टाइम यहाँ पे पूरे में गाय खुली रहती है। तो मैडम ओवरऑल এই বলতেছে যে সব সময় খুলে রাখে আর বাদ বাকি যে 3 ঘন্টা এই कैसा যে महसूस हो रहा है आपको ये करके? আটকে রাখে मतलब इससे सेटिस्फैक्ट्री काम और कोई नहीं जी। है। आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इससे सेटिस्फैक्ट्री काम कोई नहीं है। आपको मन की खुशी और शांति, जो लोगों को প্রিয় দর্শক, আমিও চেষ্টা করতেছি আসলে গাভীর একটা প্রজেক্ট করার জন্য। ইনশাআল্লাহ আপনারা হেল্প করবেন আমাকে, আমার যতগুলো মেটেরিয়াল প্রয়োজন হবে আপনাদের সাথে সহযোগিতা করে সবকিছু আনার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।